کہ اس کو یہیں پر چھوڑ دو۔ وہ ضعیفہ چھوڑ کر چلی گئی، لیکن ماں ہے، ایک زمانے کے بعد میں اس کو اپنے بیٹے کی یاد آئی، لاؤ کم سے کم اپنے بیٹے کو میں دیکھ کے تو آؤں کس حالت میں ہے۔ فوراً جیسے ہی بیٹے کی یاد آئی، ماں کی ممتا ہے، آگے تو بڑی ہے، اور بڑھنے کے بعد جیسے اس نے دیکھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور کھانا کیسے کھا رہے ہیں؟ آپ مرغی کے ساتھ کھانا، مرغی کا سالن ہے اور اس سے کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور دور بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے، سوکھی روٹی چبا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے۔ وہ ماں اس کو جلال آ گیا اور کہنے لگی، اے عبد القادر جیلانی، اے غوث اعظم، آپ کیسے ہیں؟ آپ تو بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم سے اس نے جب کہا، آپ تو غوث اعظم ہیں، آپ کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی، آپ تو مرغی کھا رہے ہیں، مرغی سے روٹی کھا رہے ہیں، اور میرا بچہ سوکھی ہوئی روٹی چبا رہا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ روٹی چبا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم نے نگاہ اوپر فرمائی اور کہا کہ اچھا، فوراً ہی جو ہڈیاں تھی مرغی کی، آپ نے وہ ساری اکٹھی کی، اور آپ نے فرمایا دیکھ، آپ نے اپنا ہاتھ ان ہڈیوں پہ رکھا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مرغی زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تم کب زندہ ہو گئے؟ جب ہم چلے جائیں تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب نیچے گرنے کا وقت نہ آ جائے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، بہت لمبی تقریر ہو گئی، بہرحال میں بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اتنی لمبی تقریر ہوگی، لیکن واقعی ایسا لگ رہا ہے یار 12 ہمارے چہروں پہ نہیں بستے، ان کے چہروں پہ بستے ہیں۔ یہ تو غوث اعظم کے شہدائی ہیں، ہم اللہ کے پیارے رسول کے امتی ہیں، یہاں تو 12 بج رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار ایسی راتیں کیا بار بار آتی ہیں کیا؟ کہ بار بار یہ ایسے شامیانے، ایسے پنڈال، ایسے علماء آپ کو ملیں گے کیا؟ نہیں مل سکتے ہیں، یہ بار بار راتیں نہیں آیا کرتی ہیں۔ تمہاری ایک ایک لمحہ کا یہاں بیٹھنا یقین کامل ہے کہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر تم 12 بجے تک چوراہے پر بیٹھو گے، کتنے گناہ کرتے اب تک، لیکن اللہ نے تمہیں ان گناہوں سے بچا کے رسول اللہ کی محفل میں بٹھا دیا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مرغی زندہ ہو گئی۔ غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا، جس دن تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا نا، جس دن تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا، وہ بھی بھنی ہوئی مرغی کھا لیا کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس لائق تو ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کہ بغداد کے گیلان کے اندر ایک شور مچ گیا، آج چاند کی کتنی تاریخ ہے، تو سب لوگ آپ کی ماں کے پاس آئے، آج چاند کی کتنی تاریخ ہے، کوئی کہتا ہے 29 ہے، کوئی کہتا ہے 30 ہے، کوئی کہتا ہے پہلی ہو گئی، سب 605 میں ہے۔ کہا کہ اگر کوئی بتائے گا تو ام الخیر فاطمہ تم جبار بتائے گی، اللہ کی نیک بندی بتائے گی، کہ بتاؤ چاند کی کیا تاریخ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ رات پیدا ہوا اور جیسی صبح ہوا ہے اس نے دودھ پینا بند کر دیا میرا، اور آج چاند کی پہلی تاریخ یعنی آج پہلا روزہ ہے، اس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا ہے، آج پہلا روزہ ہے۔ اور جب شام ہوئی تھی اور نماز اذان کے مغرب کا وقت ہوا، روزہ افطار کا وقت، اس وقت حضور غوث اعظم نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ ہے۔ حضرت غوث پاک کی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی ہیں، وہ ایسی اللہ کی نیک بندی ہے کہ جب کہ قحط کا عالم پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور
जानवर भी मर रहे थे। लोग कह रहे थे बारिश नहीं हो रही है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमारी जानें चली जाएंगी। सारे लोग जमा हो गए, आपकी फूफी के पास पहुंचे और पहुंचकर कहने लगे, आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि बारिश हो जाए, वरना सारे जानवर मर जाएंगे, हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, हमारी जानें चली जाएंगी, कहर का आलम पड़ चुका है। आपकी फूफी ने कहा चादर ओढ़ कर आई है। आपने फरमाया सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। सब लोग अपने घर आ गए। कोई कहने लगा इन्होंने तो दुआ ही नहीं की, हमने तो कहा था। हम कोई बातें बनाने लगा, कोई बातें बनाने लगा, लेकिन गौसे आजम की फूफी है, कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे बाकी फूफी ने फौरन झाड़ू को उठाया, चादर को ओढ़ा और अपने आंगन में झाड़ू लगाने लगी है। झाड़ू लगा के कूड़ा एक कोने में इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उसी चादर के दामन को खुदा की बारगाह में फैलाया। ए परवरदिगार, ए इलाहा अमीन, तू जानता है झाड़ू तेरी गुनहगार बंदी ने लगा दी है, अब छींटा लगाना तेरा काम है। ये अल्लाह छींटा तू लगा दे। इतनी दुआ मांगी है, ऐसी मूसलाधार बारिश हुई थी कि वो लोग फिर दोबारा आए थे कि बारिश के लिए दुआ कीजिए कि रुक जाए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारका है। आप कई रोज खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। आपने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज 40 साल अदा फरमाई है। हुजूर गौसे आज़म 3 साल तक मुतवातिर जंगलों में रहे, दरख्त के पत्ते खाते रहे, घास खा खा के गुजारा फरमा लिया है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त के एक बहुत बड़े वली कामिल जिनका नाम अहमद जाम रहमतुल्लाह तआला अलैह है, वो शेर के ऊपर बैठकर सवारी करते थे। शेर के ऊपर ना कोई लगाम लगी हुई है, ना कोई रस्सी लगी हुई है, बल्कि शेर के ऊपर बैठ रहे हैं। जिधर को हुक्म दे रहे हैं शेर उधरी को चल रहा है, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है पूरी मखलूक उसकी हो जाया करती है, उसकी ताबे फरमा बरदार हो जाया करती है। उन्होंने सोचा अपना दबदबा, अपना रुआब डालने के लिए कहा कि आज हम खानकाह कादरिया जाएंगे, गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे, खाना हम वहीं तनावुल फरमाएंगे। शेर के ऊपर सवार हुए और शेर के ऊपर सवार होकर चल दिए। खानकाह कादरिया में आए, मुरीदों से कहा आज हमारे खाने के इंतजाम करो और हम खाना यही खाएंगे। हुजूर गौसे आजम को बता दिया गया अहमद जाम आए हैं, शेर के ऊपर बैठ कर आए हैं, खाने का इंतजाम इनका कर दिया जाए। आपने फरमाया खाने का इंतजाम करो। खानकाह में हुक्म दे दिया, खाने का इंतजाम हो रहा है, दस्तरखान लगा दिया गया। थोड़ी देर के बाद पीराने पीर रोशन ज़मीन तशरीफ ले आए, दस्तरखान पे तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया अहमद जान खाना शुरू करो। कहा हुजूर मैं ऐसे खाना नहीं खाता हो जब तक कि मेरा शेर खाना नहीं खा लेता है, पहले मेरे शेर को खाना खिलाया जाए। आपने फरमाया क्या खाएगा? कहा ये गाय की खुराक है इसकी, ये गाय खाएगा। आपने मुरीद को हुक्म दिया जाओ हमारी गायों में से एक गाय खोल के ले जाओ। तो ऐसा नहीं था कि आपने फरमाया किसी दूसरे की गाय खोल के ले आओ, बल्कि नहीं, हुजूर गौसे आजम की खुद गाय थी। आपने फरमाया हमारी गायों में से एक गाय ले जाओ। वो गाय लेकर चले और जैसी चल दिए हैं आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन उसी खानकाह के दरवाजे पर एक कुत्ता भी पड़ा रहता था, बड़ा नागर और कमजोर कुत्ता था, चल नहीं सकता था सही तरीके से। वो खानकाह की जो हड्डियां, जो रोटियां बचती थी वही खा खा के गुजारा किया करता था। उसने भी सुना आज मेरे मालिक की गाय को शेर खाएगा, मैंने भी तो यहाँ का नमक खाया है, मैं भी देखता हूँ कि किस तरीके से खाएगा। आगे आगे मुरीद चल रहे हैं, उनके पीछे गाय चल रही है, गाय के पीछे शेर चल रहा है, शेर के पीछे कुत्ता भी चल रहा है। कुत्ते को कौन पूछे, वो भी बिल्कुल लागर दुबला कमजोर कुत्ता है, सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा है। मुरीद गाय को ले गए, उन्होंने गाय को बांध दिया और गाय को बांधने के बाद में अब शेर से कहा ये तुम्हारी खुराक है, तुम्हें इजाजत है खा लो। लेकिन शेर की आदत होती है पहले वो हमला करता है, उसके बाद कहीं जाके वो मार पर हमला करता है, मार देता है, उसके बाद कहीं जाके वो खाता है। उधर जैसी इजाजत मिली उसकी रगों में, उसके नाखून में खून दौड़ने लगा हमला करने का। इधर बराबर से आके कुत्ता भी खड़ा हो गया, देखते हैं शेर कैसे हमला करेगा। लेकिन शेर काहे को देखे कुत्ते को, वो कुत्ता वो भी लाखरों कमजोर कुत्ता बराबर में खड़ा है। इधर अहमद जाम और सरकार गौसे आजम दस्तरखान पर तशरीफ फरमा है खानकाह कादरिया में। इधर शेर के नाखून में फौरन करंट दौड़ता है और जैसी हमला करना चाहा उसने गाय के ऊपर, फौरन वो कुत्ता बराबर में खड़ा था, उसने अपने जबड़ों से अहमद जाम के शेर के हुलकूम को पकड़ लिया। कह दो यार सुभान अल्लाह। हुलकूम को पकड़ लिया और हुलकूम को पकड़ने के बाद में अब शेर के हुलकूम को
कुत्ते ने पकड़ लिया। कहीं आपने सुना है कुत्ते ने किसी शेर को मारा है? लेकिन वो भी कुत्ता बड़ा कमजोर लागर कुत्ता है, लेकिन अब उसने हुलकुम को अपने जबड़ों से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कुत्ता पूरी ताकत लगाता, शेर पूरी ताकत लगाता रहा छुड़ा ले गर्दन को, लेकिन कुत्ता नहीं छोड़ रहा है। बहुत देर हो गई, उटक पटक हो रही है, मगर कुत्ता नहीं छोड़ रहा है। आखिरकार शेर का दम निकल गया, शेर खत्म हो गया। ये मंजर मुरीद ने देखा, दौड़ते हुए खानकाह में पहुंचे। कहा हुजूर, अहमद जाम का शेर खत्म हो गया है। कहा कैसे करके खत्म हो गया? कहा कुत्ते ने मार दिया है। अहमद जाम को जलाल आया, कहा कि अरे कुत्ते भी शेरों को मार दिया करते हैं? कहा सही बताओ? कहा हाँ, तुम्हारे शेर को कुत्ते ने मार दिया है। कहा बस इतना बता दो कि वो कुत्ता कहाँ का था, कौन से जंगल का कुत्ता था? तो कहा कि कुत्ता वो कहीं और का नहीं था, बल्कि खानकाह कादरिया पे पड़ा रहता था और वो सूखी हुई रोटी खाया करता था, सूखी हुई हड्डियां खाया करता था। वो लाखों कमजोर था। वो कुत्ता गौसे आजम का पालतू नहीं था, बल्कि खानकाह के दरवाजे पर पड़ा रहता था। तो आपने अहमद जान ने बेबांगे दोहर कहा, ये कुत्ते की मजाल नहीं है कि अहमद जान के शेर को मार दे। अगर ये कमाल है तो कमाल गौसे आजम है कि इनके दर पे पलने वाला कुत्ता अहमद जाम के शेर को मार दिया करता है। तो हम कुत्ते दो तरीके के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, दूसरा फालतू हुआ करता है। और जब कुत्ता पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, तो जब वो निकलता है लोग देखते इसको मारना नहीं है। और जो कुत्ते फालतू होते हैं पूरी रात पिटते रहते हैं बेचारे, पूरे दिन पिटते रहते हैं, इधर जाए तब पिटे, उधर जाए तब पिटे। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा पड़ा हुआ होता है। तो ए सुन्नी मुसलमानों, जमाने को बता दो, हम फालतू कुत्ते नहीं है, हम गौसे आजम के पालतू है। हमारे गले में गौसे आजम का पट्टा पड़ा हुआ है। आला हजरत फरमाते हैं, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर दर से संग से है मुझको निस्बर, मेरी गर्दन में भी है दूर का तोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है वो नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा।